دوستو ویڈیو کے آغاز میں آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ ناظرین گرامی، تاریخ بڑی سفاک ہوتی ہے۔ اس کی سفاکیت کا زور جب چلتا ہے تو بڑے بڑے جرنیل، راجے، مہاراجے، کمانڈر وقت کے دبیز پردے میں گم ہو جاتے ہیں، اور یہی تاریخ جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو انارکلی جیسے کردار کے جن کے وجود پر بھی اکثر تاریخ دانوں کو شک ہے وہ بھی امر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تاریخ کے ایسے ہی گمنام کرداروں سے گرد ہٹانے کی کوشش کی ہے جنہوں نے اپنی فہم و فراست اور دلیری کے باعث اپنے اپنے دور میں کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے۔ سردار بیرم خان ہندوستان کی مغل سلطنت کا ایک ایسا ہی گمنام کردار ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں ظہیر الدین بابر کے ہاتھوں ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد پڑی تھی، اور ظہیر الدین بابر ہی مغلیہ سلطنت کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ مگر مغلیہ سلطنت کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جب اس کا وجود ہندوستان سے ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں سردار بیرم خان وہ کردار ہے جس کی دلیری، فہم و فراست اور سپہ سالارانہ صلاحیتوں نے مغلیہ سلطنت کو وہ مضبوط اور مستحکم بنیاد فراہم کی کہ آنے والی کئی صدیوں تک کے لیے مغلیہ سلطنت مامون اور محفوظ ہوگی۔ معزز ناظرین گرامی، ظہیر الدین بابر اس لحاظ سے بڑا بدقسمت تھا کہ ہندوستان کے تخت پر وہ صرف 5 سال ہی حکومت کر سکا، اور 1530 میں ایک ڈرامائی انداز میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ نصیر الدین ہمایوں تخت نشین ہوا اور مغل سلطنت میں برادرانہ کشمکش شروع ہوئی۔ نتیجتاً مغل تخت پر افغان سردار شیر شاہ سوری قابض ہو گیا اور ہمایوں کو ہندوستان سے فرار ہونا پڑا۔ شیر شاہ سوری کو بھی ہندوستان کا تخت چند سال کے لیے ہی نصیب ہوا اور چند سال ہی میں وہ وفات پا گیا۔ شیر شاہ سوری کے جانشین نااہل ثابت ہوئے اور تخت کے لیے آپس میں لڑائیاں شروع کر دی، جس سے ہندوستان دوبارہ فتح کرنے کا موقع ہمایوں کو مل گیا اور اس نے سوری خاندان سے ایک کے بعد ایک علاقے واپس لینے شروع کر دیے۔ سردار بیرم خان مغل فوج میں اسی دوران شامل ہوا۔ وہ ایک ایرانی طالع آزما تھا۔ میدان جنگ میں بیرم خان کی دلیری اور بہادری کو جلد ہی ہمایوں کی نگاہوں نے بھانپ لیا۔ بیرم خان ہمایوں کے مقربین میں شامل ہو گیا، اور پھر ایک دن ہمایوں نے بیرم خان کو شہزادہ اکبر کا اتالیق مقرر کر دیا۔ اب سردار بیرم خان ولی عہد شہزادہ اکبر کا نگران تھا۔ اس نے اکبر کو امور سلطنت سمجھانا شروع کر دی۔ ابھی بیرم خان کو اکبر کا اتالیق مقرر ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ ہمایوں کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ یہ وقت مغلیہ سلطنت کے لیے نہایت کڑا تھا۔ شیر شاہ سوری کے جانشین اگرچہ شکست خوردہ تھے مگر موجود تھے۔ بیرم خان نے ہمایوں کی وفات کی خبر ملتے ہی 13 سالہ مغل شہزادے کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ یہ اقدام بلا شبہ بیرم خان کی مغلیہ خاندان سے وفاداری کا عین ثبوت تھا، مگر افسوس اس وفاداری کا صلہ اسے نہ مل سکا۔ ڈسکوری کے معزز دوستو، اکبر کے تخت نشین ہوتے ہی مغلیہ سلطنت کے دشمنوں نے کمر کس لی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مغلیہ سلطنت اب چراغ سحری ہے جسے باد مخالف کا ایک ہی جھونکا آسانی سے بجھا سکتا ہے۔ ہندوستان کے وہ شکست خوردہ حکمران جو کابل اور قندھار سے لے کر دہلی اور آگرہ تک ہمایوں سے مار کھا کر ہندوستان سے فرار کی راہیں تلاش کر رہے تھے، ان کی ہمتیں اچانک بڑھ گئی۔ نومر اکبر کے بادشاہ بنتے ہی افغانستان اور ہندوستان میں ایک ساتھ بغاوتیں برپا ہو گئی۔ سلیمان، شاہ ابو المعالی، سکندر شاہ سوری، احمد شاہ عادل، غرض ہر طرف بغاوتیں اور شورشیں نظر آنے لگی۔ ایسے میں عملی طور پر مغل سلطنت کی زمام اقتدار بیرم خان نے سنبھال لی۔ اب وہ وزیر اعظم، سپہ سالار، اتالیق سب کچھ تھا۔ نومر بادشاہ اکبر ہر معاملے میں بیرم خان کے مشورے کا محتاج تھا۔ وہ بیرم خان کو خان بابا کے نام سے یاد کرتا تھا۔ بیرم خان ایک لائق سپہ سالار اور مشیر تھا۔ اس نے اپنی دلیری اور تدبر کو کام میں لاتے ہوئے ایک ایک کر کے بغاوتوں پر قابو پانا شروع کیا۔ ان شورشوں اور بغاوتوں میں سب سے اہم اور خطرناک شورش ہیمو بکال کی تھی۔ ہیمو بکال سوری خاندان کے آخری حکمران احمد شاہ عادل کا وزیر اعظم اور سپہ سالار تھا۔ اس نے 1000 ہاتھی اور 50,000 گھڑ سوار کے لشکر جرار سے مغل سلطنت کے ایک اہم مرکز آگرہ پر حملہ کر دیا۔ آگرے میں مغل پسپا ہو گئے اور مغل لشکر دہلی چلا گیا۔
मुगल लश्कर के ताकुब में हिमू बकाल दिल्ली पहुंच गया। मुगल वहां भी पसपा हो गए। अब मुगलों के ताकुब में हिमू बकाल ने पंजाब का रुख किया, जहां 9 उमर अकबर मुगल सल्तनत की बका की जंग लड़ रहा था। हिमू बकाल की आमद की खबर सुनकर घबरा गया। कई उमराए सल्तनत ने उसे मशवरा दिया कि इस वक्त हिंदुस्तान से भागकर काबुल चले जाना चाहिए और फिर नई तैयारियां करके हिंदुस्तान वापस आएंगे। अगर उस वक्त अकबर हिंदुस्तान से फरार हो जाता तो शायद हिंदुस्तान में मुगल दोबारा इक्तदार हासिल न कर पाते। नाज़रीन ग्रामी, उस मौके पर बैरम खान का दलेर और जंगजुआना किरदार नजर आता है। उसने फरार की तजवीज रद्द करते हुए कहा, बादशाह तो अभी बच्चा है, तारीख इसे तो माफ कर देगी, मगर हमारे मुंह पर शिकस्त की स्याही गिर जाएगी। हम मर जाएंगे या फतह हासिल कर लेंगे। यह सुनकर अकबर ने ऐलान कर दिया कि हम लड़ेंगे, मरेंगे, मगर हिंदुस्तान से वापस नहीं जाएंगे। खान बाबा दुरुस्त कहते हैं। पानीपत के तारीखी मैदान में जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी, आज उसी मैदान में मुगल सल्तनत की बका के लिए बैरम खान की सरबराही में मुगल लश्कर हेमो बकाल से बरसरे पेकार था। बैरम खान ने कमाल बहादुरी के साथ मैदान जंग के मुरवजा असूलों पर दलेराना अंदाज में अमल करते हुए हिमू बकाल को शिकस्त से दोचार कर दिया। हिमू बकाल जख्मी हालत में मुगल दरबार में पेश हुआ। बैरम खान ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। इस फतह के अगले दिन अकबर फातिहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुआ। अकबर की यह फतह बिलाशुबा बैरम खान की कायदाना सलाहियतों की मरहून मिन्नत थी और इसी फतह से बैरम खान हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का वजूद बरकरार रखने में कामयाब रहा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बैरम खान ने बगावतों पर काबू पाना शुरू कर दिया। पंजाब के कई इलाके आगरा, पिशावर और ओ दोबारा मुगल राज में शामिल हो गए। अकबर ने आगरा को दारुल सल्तनत करार दिया और बैरम खान की मशावरत से उमराए सल्तनत को जिम्मेदारियां और जागीरें अता करना शुरू कर दी। नाज़रीन ग्रामी, बैरम खान को मुगलिया सल्तनत में अहम शख्सियत समझा जाने लगा था। अकबर के बेशतर फैसलों में बैरम खान की रजामंदी शामिल होती थी। बैरम खान को मुगल सल्तनत में गैर मामूली इख्तियारात हासिल हुए। अब जहां बैरम खान की ताकत में इजाफा हुआ, वहां उसके दुश्मनों में भी इजाफा होना शुरू हो गया। ये कोशिशें शुरू हो गई कि किसी तरह बैरम खान को अकबर की नजरों से गिराया जा सके। इन सासी अनासिर में अहम नाम महामंगा का आता है। ये औरत बचपन में अकबर की आया के फराइज अंजाम देती रही, इसलिए अकबर को उससे एक खास निस्बत और मोहब्बत थी। महामंगा की ख्वाहिश थी कि अकबर का निकाह मिर्जा कामरान के खानदान में हो। मिर्जा कामरान हुमायूं का भाई था और बाबर के बाद तख्त नशीनी पर मिर्जा कामरान और हुमायूं की कई लड़ाइयां हुई थी। मिर्जा कामरान पर काबू पाने के बाद हुमायूं ने उसे अंधा कर दिया था। बैरम खान दुश्मन खानदान में निकाह का शदीद मुखालिफ था। महमअंगा अकबर पर से बैरम खान के असरात कम करना चाहती थी। इन दोनों में कशमकश शुरू हो गई और निकाह के मामले में महमअंगा का पलड़ा भारी रहा और बैरम खान की मुखालफत के बावजूद अकबर ने मिर्जा कामरान के खानदान में निकाह कर ली। अब महमंगा ने कुछ उमराए सल्तनत अपने साथ मिला लिए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मिलकर अकबर के कान भरना शुरू कर दिए। उन्होंने अकबर को यह एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि बैरम खान का इक्तदार मुगल दरबार के लिए खतरनाक होता जा रहा है और यह कि बैरम खान किसी भी वक्त अकबर को माजूल करके मुगल सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। द डिस्कवरी के मुआजिज दोस्तों, इसी दौरान बैरम खान के हुक्म से 2 उमराए सल्तनत मिर्जा तरदी बेग और मसाहिब बेग को कत्ल कर दिया गया। बैरम खान के इस इकदाम से उसके मुखालफीन को मौका मिल गया और उन्होंने अकबर को यह बावर कराया कि बैरम खान मुगलिया सल्तनत के वफादार उमरा को खत्म करके अपने इक्तदार की राह हमवार कर रहा है। दूसरी जानिब हाथियों वाला वाकया रूनुमा हो गया। इस वाकये की तफसील कुछ यूं है कि हाथियों के तमाशे में कुछ हाथी बेकाबू हो गए और इस कैफियत में उन्होंने बैरम खान के खैमों को नुकसान पहुंचा दिया। इस पर बैरम खान चिरागपा हो गया और उसने फील बानों को कत्ल करवा दिया। सासी उमरा ने बादशाह से कहा कि शाही फील बानों को कत्ल करके बैरम खान ने दीदा और दानिस्ता बादशाह की तौहीन की है। इसी तरह के और भी कई छोटे छोटे वाकयात पेश आते रहे और बैरम खान के मुखालफीन के जिनमें महमअंगा सरे फहरिस्त थी, अकबर को उसके खिलाफ उकसाते रहे। यहां तक कि अकबर बैरम खान से मुतनफिर हो गया और उससे छुटकारा हासिल करने के बारे में सोचने लगा। और फिर एक दिन जब बैरम खान दारुल सल्तनत से दूर था, अकबर ने शाही फरमान के जरिए उसे माजूल करते हुए अमूरे सल्तनत खुद संभालने का ऐलान कर दिया।
एक रिवायत के मुताबिक उस वक्त अकबर बादशाह की उम्र 18 बरस थी। बैरम खान को अकबर के इस शाही फरमान का इल्म हुआ तो वह बड़ा सटपटाया और उसने अकबर को मुलाकात का पैगाम भेजा। वो चाहता था कि मुलाकात करके अकबर के दिल को अपने लिए साफ करने की कोशिश करे। इस मौके पर महामंगा फिर से सामने आ गई और अकबर को बैरम खान से मिलने से रोक दिया और कहा कि इस मुलाकात में अकबर की जान को खतरा लाहक हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, हर तरफ से मायूस होकर बैरम खान ने कुछ दोस्तों से मदद लेने की खातिर पंजाब का रुख किया। अकबर पहले ही मोहतात था। उसने बैरम खान को रोकने के लिए एक लश्कर रवाना कर दिया। गुजरात के मकाम पर मुगलिया सल्तनत के इस अजीम मोमार का आखिरकार मुगल लश्कर से टकराव हो गया। इस मार्के में बैरम खान ने शिकस्त खाई और दरबार अकबरी में पेश किया गया। दरबार में अकबर ने बैरम खान को बड़ी इज्जत दी और इस तरह पेश आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर में अकबर ने बैरम खान को बगर्ज़ इबादत हिजाज मुकद्दस का सफर करने का मशवरा दिया। उस जमाने में हिजाज का सफर निहायत दुश्वार और तवील था। इस सफर में आजमीन हज को लूट मार और कत्लो गारत गरी का भी अंदेशा रहता था। आजमीन हज का सफर हज से पहले कहा सुना मुआफ करवाना उसी जमाने में पड़ा। बादशाह वक्त जब किसी अमीर या मसाहिब से हद दर्जा नाराज होता या उससे शदीद खतरा लाहक होता तो बादशाह उस अमीर को सफर हिजाज पर जाने का कहता। इसका मतलब यह होता कि बादशाह उस शख्स को अपनी सल्तनत के किसी गोशे में भी देखना नहीं चाहता। अक्सर औकात ऐसे शख्स को कत्ल करके किसी जंगल ब्याबान में फेंक दिया जाता और वो दौरान सफर ही लापता हो जाता। ऐसा ही कुछ बैरम खान के साथ भी हुआ। सफर हिजाज के दौरान एक शख्स मुबारक खान उसके ताक़ुब में लग गया। एक रिवायत के मुताबिक बैरम खान ने पानीपत की लड़ाई में मुबारक खान के बाप को कत्ल किया था। यही वजह थी कि मुबारक खान बैरम खान का दुश्मन बन गया। अब उसे मौका मिल गया और रास्ते में उसने मौका पाकर बैरम खान का कत्ल करके उसके तमाम असबाब और मालो दौलत लूट ली। बैरम खान के बेटे अब्दुल रहीम खान और बेवा सलीमा बेगम को दरबार अकबरी में पेश किया गया। अकबर ने सलीमा बेगम से निकाह कर लिया और उसके बेटे को किफालत में ले लिया। यूं सल्तनत का ये अजीम मोमार एक साहसी औरत और चंद उमरा की भीड़ चढ़कर खत्म हो गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।